मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोग सब कैसे हैं? होप ऑल ऑफ यू आर इन वेरी गुड हेल्थ। सो टुडेज टॉपिक इज़ बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ till now we have done factorization, how to find out common factors, common multiples. Now today we will restrict ourselves to the prime factorization. Prime number, all of you know, a number which has exactly two factors is called prime factors. So when a number is expressed as a product of its factor, we say that the number has been factorized. Example 24, we can write 24 like 3 into 8. So we say that 24 has been factorized. This is one of the factorization of 24. Second, दूसरा तरीका जो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, देखिए 24 we have written it 2 into 12, then again 12 is again factorized into 2 into 6, then again 6 is factorized 2 into 3. Similarly we can write 24 is like this, 4 into 6 is also 24. So 4 can be factorized as 2 into 2 and 6 is factorized as 2 into 3. So at last we get the factors 2 into 2 into 2 into 3. So the factors in the last line, they all are prime numbers. That's why they are called the prime factors. Clear? So you see, these are the prime factors of 24. So here you see factors of 36. Clear? So when we say find out the factors of 36, we can find out in different ways. Like we can do 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6, like this. Now 2 into 18 can be further factorized as 2 into 18 can be further factorized as 2 into 9, and 9 is again can be factorized as 3 into 3. Similarly 12 is factorized as 3 into 4, then 4 is again 2 into 2. Clear? So we get 2 into 2 into 3 into 3. Again we can write 4 nines are 36. So this 4 is factorized as 2 into 2 and 9 is factorized as 3 into 3. So again we get the prime factors. Then we can do 6 into 6. Then 6 is factorized as 3 into 2. Then again this 6 is factorized 3 into 2. So we get the prime factors in the last line. So you see that in the last line we are getting all numbers prime. So this is called prime factorization. Clear? So today's topic is prime factorization. So this question is for practice. You can find out the prime factorizations of 16, 28, 18. Okay. Now this is a factor tree. See how to make a factor tree. You have already done this in class 5. आप सबने class 5 में किया हुआ है. Then again I can explain you that a tree is formed by the factors. Suppose 90 is there, so you can write it as 10 into 9. Clear? Then 10 is again factorized as 2 into 5. This 9 is again factorized as 3 into 3. So we are getting a tree. This tree is called factor tree. Clear? So now one example is there. Find the prime factorization of 980. Suppose we have to find the prime factorization of 980. This is a large number. Clear? So what will you do? You will just divide this number by 2, 3, 5, 7 by the prime numbers only. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number. So you will keep on dividing this 980 by the prime numbers until you get remainder 0. So you see this, we have seen 2 980. So it is divisible by 2, and in this division you will use divisibility test. You have already done. आप सब ने divisibility test किए हुए हैं. आपको पता है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो यू कैन चेक इट. फिर आप इसे 2 से डिवाइड करते जाएंगे. इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 490 आया, देन अगेन 490 इज़ डिविजिबल बाई 2. अब इसके लास्ट में बेटा क्या आ गया? 5. तो जिस भी नंबर के लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से डिवाइड होता है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे. देन इट इज़ 49. 49 इज़ डिविजिबल बाई 7. तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आप जिन नंबर से डिवाइड करेंगे ये हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे. और फिर आप इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7. सो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ 980. सो टुडे यू विल डू एक्सरसाइज 3.5. आप 3.5 एक्सरसाइज करेंगे. पहला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं. तो पहला है, देखिए, क्या अगर एक नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा? ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है कि फॉल्स है? ये बिल्कुल फॉल्स है. क्यों? क्योंकि 3 तो 3 से डिवाइड होता है, तो क्या वो 9 से भी डिवाइड होगा? नहीं होगा. ठीक है. एंड इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो क्या वो 3 से डिवाइड होना चाहिए? येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सी, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय वो 3 एंड 6. कोई भी नंबर 18 से कब डिवाइड होगा? अगर वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड होगा. बताइए.
अगर वो 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, तो 18 से भी हो जाएगा बिल्कुल। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 देन इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 90। तो क्या वो 90 से, तो बेटा इन सभी ट्रू फॉल्स में यू हैव टू यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल्स आई हैव टोल्ड यू। जो डिविजिबिलिटी रूल्स हमने लिखवाए हुए हैं वो सारे आपने इन पे अप्लाई करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर? तो यहाँ तक आपके ये आई तक तो जो स्टेटमेंट है इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, और ये सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये ऑलरेडी हमने आपको बताए हुए हैं, तो आपको रिकॉल करना है, चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। क्लियर? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर आपके फैक्टर ट्री गिवन है, इसमें से कुछ फैक्टर्स मिसिंग हैं आपके। देखिए, तो जो मिसिंग है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आपको करेक्ट फैक्टर्स को फिल करना है। अब जैसे यहाँ पे 6 है, तो 6 का फैक्टर जो है उसको 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 10 का जो है वो 5 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। जब भी हम कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें किस फैक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं? तो हम 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा। ठीक है, 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए और उसको एक्सप्रेस करिए एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9999। ठीक है, 9999 आप लिखेंगे और उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको आज करना है। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर लिखना है और उसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इनके आंसर्स भी शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, तो ये आप देख लीजिएगा। पहले आप खुद इनको करने की कोशिश करिएगा। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर बेटा? तो आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा।